Hello everyone. In this video today, I'm going to talk about all the sources and all the materials that I referred to for my preparation for Rajasthan GK exam in Assistant Professor 2023 vacancy. Now, before I begin, I want to clarify that this video is not an advertisement for any coaching or for any test series. This is just a sharing of my journey of the things and the sources that I used during my journey. Since there are 181 candidates, there are 181 techniques, tips, tricks, and methods to solve and crack this exam. I am just sharing my tips and tricks with an effort to help those who are as new and as unknown to this topic as I was when I started my preparation. So talking about Rajasthan GK, as I've already mentioned in my last video, my go-to books was Springboard Academy notes because they were available in English and they were fairly detailed and they had knowledge which started from a very basic level. So for a basic understanding, you can refer to any book that you want, which gives you a holistic approach covering all the topics that are important from exam point of view and also starting at a very basic level. Since there are various students who have not studied from RBSC board, there are students like me who have studied from CBSE board and their knowledge of Rajasthan general knowledge is relatively weak. So you can easily refer to Springboard books, one because they're in English and two because they're very holistic and very basic. So they'll give you a basic idea about how to begin things, then they'll slowly build up on the facts and information. So for that, what I did was I got those books, and for initial 2 months, I just kept reading those. Initially, we'll be bombarded with information. ऐसा लगेगा कि इतनी सारी information है कैसे याद होगी? But trust me, for 2 months initially, just keep reading those books. I used to mark 5 days in a week for 5 different subjects like polity, art and culture, history, geography, and economics. So every day, giving 3 to 4 hours to these books and just read them. सिर्फ उनको हमें बेसिक रीडिंग करनी है, हमें जो इम्पोर्टेंट लग रहा है या हमें जो चीज़ समझ में आ रही है उसको अंडरलाइन करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हम आके एक बेटर रीडिंग कर सकें. So for good 2 months, I just read those books without trying to memorize anything, but trying to make a sense of how things are and how do we have to approach. उसके बाद 2 महीने के बाद काफी कुछ हमारी भी समझ डेवलप होती है कि हमें किस टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या चीज हमें इजी लग रही है और क्या हमें डिफिकल्ट लग रहा है. That's the first thing. Second thing is to practice the political map of Rajasthan. जैसे कि मैंने ये वाला मैप लिया था, एक बेसिक राजस्थान का वॉल मैप है, पॉलिटिकल मैप. आपको किसी भी स्टेशनरी पे या अमेजोन पे भी मिल जाएगा. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इस मैप को आप उस जगह लगाइए जहां पे आप रोज देखते हैं, क्योंकि इस मैप को हमें लर्न करके मेमोराइज करना है. विदाउट लर्निंग द पॉलिटिकल मैप ऑफ राजस्थान इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक द जीके पेपर. तो सबसे पहले इस मैप को उस जगह लगाइए जहां आपकी रोज नजर पड़ती है और जस्ट इस मैप को भी सिर्फ ग्लांस करिए. ग्लांस, लुक एट इट फॉर 1 minute एवरी डे इन द टाइम. घड़ी देख के नोट करके 1 मिनट इस मैप को रोज देखिए. उसके बाद इस तरीके के पॉलिटिकल मैप्स लेकर उस पे डिविजन्स बनाइए. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी दिन ज्योग्राफी पढ़ी तो उसमें आपने जो नदियां देखी उनका एक मैप बना लीजिए जिसपे सारी नदियां आपने बनाई है. इफ यू आर स्टडिंग माउंटेन्स एंड पीक्स वन डे तो इस पे माउंटेन्स एंड पीक्स बनाइए. बट उस सबसे पहले इस पॉलिटिकल मैप को मेमोराइज करके इस मैप पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स मैप करने की कोशिश कीजिए. I had a colleague named Rishita. She gave me the idea of referring to Springboard books, and that idea and that suggestion was extremely valuable during my preparation. Similarly, मेरी एक और colleague थी सुरभि शर्मा मैम. उन्होंने मुझे बोला कि वो चाय पीते हुए इस political map पे सारी districts mark करती थी. I started doing the same, and within few days you will realize कि आपको राजस्थान का एक मैप आपके माइंड में बनने लग जाएगा. और जब वो माइंड में मैप क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप स्प्रिंग बोर्ड की या कुछ भी बुक्स जब पढ़ रहे हैं तो आप जैसे इफ यू आर रीडिंग मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, सो योर माइंड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मैपिंग कि ये मिनरल मुझे इस जगह मिलता है. तो आपकी प्रेपरेशन बहुत ईजी और बहुत सॉलिड हो जाएगी. So these are the few things that I started with. Now next, after you have read Springboard or any other notes to have a basic understanding, that is what I did. I joined a test series which was on Telegram with the name of RPSC Infocation. It was a relatively small group. There were only 17 to 20 participants initially. और उनका बेस्ट पार्ट ये था कि वो हर दिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स देते थे. अभी तक हम जब मैं पढ़ रही थी जब तक, तो आई वाज डूइंग entire geography in one day, reading the entire geography in one day.
लेटर ऑन व्हेन आई जॉइन दीज टेस्ट सीरीज, तो वो एक टॉपिक ज्योग्राफी का लेते थे, एक आर्ट एंड कल्चर का, एक हिस्ट्री का. सो एवरी डे यू आर प्रिपेयरिंग दीज 3 टॉपिक्स. सो मेरा जो पर्सनल एम था एक दिन में ज्योग्राफी की स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ने, उसके अलावा आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट. हर शाम को इनका टेस्ट होता था और 3 या 4 टॉपिक्स आते थे. उससे क्या हुआ कि मेरा हर टॉपिक बहुत इजीली प्रिपेयर हो गया. अगेन दिस टेस्ट सीरीज वाज इन इंग्लिश, वाज इन हिंदी, सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, बट दिस टेस्ट सीरीज प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एज कम्पेयर टू जो अदर टेस्ट सीरीज होती है जिसमें पूरा पूरा कोर्स आता है. वो हम टुवर्ड्स एंड ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वो टुवर्ड्स एंड ही ली थी और एंड में ही हमारी जब प्रिपरेशन हमें लगता है कि कंप्लीट है, अब हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, अब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं उस टेस्ट सीरीज के हेल्प से कि हमें किस एरिया पे फोकस करना है. सो वो टेस्ट सीरीज मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट में ले टुवर्ड्स से 1 month बिफोर योर एग्जाम. बट ये जो शॉर्टर टेस्ट सीरीज है, आई पुट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल, जिस टेलीग्राम पे ये क्विज होता था. इफ दे आर हैविंग इट अगेन दिस ईयर, देन you can join it if you think it is for your good. तो नोट्स पढ़ने के बाद, मैप्स प्रैक्टिस करने के बाद, देन यू कैन ऑल्सो लुक एट दिशा 2020. This is a very useful book as it covers all the topics of Rajasthan GK, और वो ऐसे questions को cover करती है जो पिछले कई सालों से RPSC की अलग अलग भर्तियों में पूछे गए questions. लास्ट ईयर का जो पेपर था एज पर एक्सपर्ट्स, और जो मैंने बहुत सारे वीडियोस सुने लोगों के, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एंड आई हैव नॉट अपेयर्ड फॉर वेरियस एग्जाम्स, बट आई एम ओनली कोटिंग व्हाट अदर्स हैव सेड, that major questions came from Disha 2020. So this book proved to be very useful for me in my preparation. But all of this, only attempt them once you have completely gone through the notes at least twice or thrice. क्योंकि जब आप 2-3 बार नोट्स पढ़ लेंगे, मैप प्रैक्टिस कर लेंगे, और वो छोटी छोटी टेस्ट सीरीज जो पर डे की मैं बता रही हूँ, ऐसी आपको कोई भी टेस्ट सीरीज मिले तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए. सो आफ्टर ऑल ऑफ दैट यू विल बी फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ वर्ड्स ऑफ राजस्थान जी के. आप डांसेस के नाम से फेमिलियर हो जाएंगे, आप इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स, स्कीम्स, इन सबसे फेमिलियर हो जाएंगे. तो ये हिंदी में है बुक अगेन, तो इसको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा. when I was preparing and I was very frustrated, सब कुछ हिंदी में है and it's not working. So one of my friends, Shalu, she suggested me a very useful app, Google Lens. गूगल लेंस को आप एक पेज पे रखेंगे, कोई एक क्वेश्चन है, पर 99% क्वेश्चंस आई एम श्योर इतना सब पढ़ने के बाद आपको दिशा 2020 के कोई भी टेस्ट सीरीज के आपको समझ में आने लग जाएंगे. फिर भी इन केस आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन क्विकली गूगल लेंस इट, स्कैन इट, और वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या उस पर्टिकुलर पेज को, लाइन को, सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा. इस पूरी प्रेपरेशन में गूगल लेंस हैज बीन अ वेरी वेरी बिग सपोर्ट फॉर मी. आफ्टर दैट इंग्लिश के नोट्स और कुछ टेबल्स जो मैंने लर्न करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए बनाए थे, ऑफ वेरियस टॉपिक्स लाइक डांसेस के एंड त्योहारों के, फेस्टिवल्स के, फेयर्स के, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दूंगी, सो दैट आपको इन सबसे फायदा हो, बेनिफिट हो. एंड लास्टली, टू ब्रेक इट डाउन, पॉलिटी पढ़ने के लिए मैंने मेजरली स्प्रिंग बोर्ड नोट्स ही यूज किए थे, और इसके अलावा मैंने बेयर एक्ट 73rd 74th अमेंडमेंट पढ़ने के लिए बेयर एक्ट यूज किया था. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड मेमोराइज जो शॉर्टर सब क्लॉजेस और आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इस आर्टिकल के इस सब क्लॉज में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्रोविजन है. सो फॉर दैट आई यूज स्प्रिंग बोर्ड नोट्स एंड बेयर एक्ट. For art and culture, Springboard notes are very good. Other than that, now art and culture is a very fact intensive topic. कौन सा आर्ट किस एरिया का है, उसके लिए आपको सबसे पहले मैप मेमोराइज होना जरूरी है, सो दैट यू कैन मैप थिंग्स एंड यू कैन मेमोराइज देम बेटर. सेकेंडली, यू कैन ऑल्सो वॉच स्प्रिंग बोर्ड की वीडियोज. उसमें वो सर इतनी बार बोल बोल के, ऑल्दो अगेन दोज वीडियोज आर इन हिंदी, बट आई अश्योर यू इतना सब पढ़ के आप वो हिंदी का सेंस इजीली बना पाएंगे. तो वो वीडियोस में वो इतनी बार एक एक फैक्ट रिपीट करते हैं कि आपको सारे फैक्ट्स एकदम लिटरली लर्न हो जाएंगे बाय हार्ट. सो आई यूज टू वॉच दोज वीडियोस ऑन रिपीट. आप खाना खाते हुए, कुछ खाना बनाते हुए, कुछ भी ड्राइव करते हुए, कहीं पे भी बस वो वीडियो चला के, आई हैड अ प्लेलिस्ट एंड आई शेयर दैट प्लेलिस्ट विद यू दैट आई सेव्ड. सो कभी एक दिन डांसेस के सुन लिया, एक बार डायलेक्ट्स का सुन लिया. So all of these things will be imprinted in your mind. I clearly remember when I was solving my exams and my question papers,
मेरे को याद आ रहा था राजवीर सर की वीडियो में उन्होंने इस डांस को इस कम्युनिटी से इस तरीके से जोड़ के, कहानी से जोड़ के, और बहुत इंटरैक्टिव, बहुत ही इजी सिंपल तरीके से वो आपको समझाते हैं. सो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. For history again, I use the notes and the videos. History is a very vast topic. Personally, I was very daunted by history. इतने सारे clans, इतने सारे उन clans के deities याद रखना, उन clans के भी sub clans, फिर उनके सारे किसने कौन सा मंदिर बनवाया. So I made a few tables for a few topics that I will share with you. But other than that, इसके लिए भी आप कुछ Springboard की videos refer कर सकते हैं, because sir explains again it with a पूरे स्टोरी के साथ और इस पूरे बैकग्राउंड बना के, तो इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू लर्न देम. एंड टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक सर्वे, यस वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर के पेपर में इकोनॉमिक सर्वे से काफी अच्छे क्वेश्चंस आए थे, एंड आई नोटिस दैट चारों ऑप्शंस में बहुत माइन्यूट डिटेल्स थी जो कि गलत थी. एज इन 9.5 को 9 लिख दिया, 3 months की जगह 2 months लिख दिया. So you can solve these questions only when you just do not know the scheme and the year that was implemented, but also the details and the nitty-gritties of the scheme. So if you go through Vikas sir's videos on इकोनॉमिक सर्वे, वो चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं. जिस तरीके के स्प्रिंग बोर्ड नोट्स में चैप्टर्स हैं, उसी हिसाब से उनकी वीडियोस हैं. एंड दे आर वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल. क्योंकि हम जब अटेम्प्ट करते हैं पढ़ना, व्हेन आई वाज डूइंग इट ऑन माय ओन, सो आई थॉट दैट ओनली ईयर एंड स्कीम इज इंपॉर्टेंट. सो आई वाज लाइक कि दिस मच आई कैन डू फ्रॉम द नोट्स. बट व्हेन आई सॉ द वीडियोस, एंड आई वाज लाइक कि दिस इज फ्रॉम अ वेरी आरएएस एंड अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आई डू नॉट नीड इट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटरमेंट के लिए मैंने वो वीडियोस देख ली. बट व्हेन आई वाज अप्रोचिंग द एग्जाम, वो वीडियोस देख देख के मैंने इतनी लर्न कर ली थी सारी स्कीम्स बाय हार्ट. सो व्हेन द क्वेश्चन केम इन एग्जाम, देयर वाज एक्चुअली अ पॉइंट इवन इन माय मॉक्स व्हेन आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड बाय द ऑप्शंस. लोगों को ऑप्शन कैंसिल आउट करने का एक अप्रोच होती है एग्जाम्स में. आई वाज एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज्ड ऑप्शंस देख के. सो आई यूज्ड टू लुक एट द स्कीम, और स्कीम से रिलेटेड जितनी बातें मुझे याद आती थी मैं साइड में नोट कर लेती थी, so that you can easily pick up, check and correct the answer. And the exact same thing happened in the exam. There were a few questions in the exam जो scheme की detail से related थे, कि किसी का 2 महीने की जगह 2.5 महीने ऑप्शन कर दिया. So when I looked at the scheme, I used the same method. Scheme देखते ही उस scheme से related मुझे जो facts याद थे, I wrote it down at the side of the question paper. और फिर quick, it was very easy to cancel out which option was wrong and which option I had to choose. So economic survey से मेरे most of the questions सही हुए हैं, only because of the videos I've watched. And it's important to watch videos because they will constantly keep repeating the things. ये किसने लाई, ये स्कीम इसलिए लाई, ये स्कीम इसलिए थी. So it is easier and you will memorize it by once or twice. So but उससे पहले you have to read the notes yourself, so that you know कौन सी चीज कहाँ है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, और क्या चीज हमारे लिए relatively important है और lesser important. Talking about geography, again notes are very good. उसमें बहुत अच्छे से maps भी बने हुए हैं, कुछ बहुत सारे acronyms भी दिए गए हैं, so that you can learn the names of the rivers or other things. Plus उसके साथ आपको इस मैप को प्रैक्टिस करने की utmost importance है. You cannot solve geography without learning these maps. And the last and the most important part of the question paper, that is current affairs. Again, current affairs के लिए I referred to 2 things only. One was Moomal magazine and one was RTS Kapil Chaudhary's videos, which are there on YouTube. I can again share all of these channels links with you in the video description and also on my Telegram channel. So even for the current affairs, one of my friend Garima, she suggested me to watch the videos by Kapil sir, and it was great. Unke, I was almost in a mood to just ब्रश जीके मूमल मैगजीन से जितनी हो जाएगी मैंने सोचा था उतना ही पढ़ के जाऊंगी. बट आफ्टर गरिमा सजेस्टेड मी टू वॉच दोज वीडियोज, आई वॉच दोज वीडियोज एंड आई prepared almost 4 to 5 months एग्जाम से 4-5 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स, उनके मंथ वाइज वीडियोस थे, उससे मैंने प्रिपेयर किए. एंड ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स मुझे छोड़ने पड़े जो मुझे नहीं आते थे. उसके अलावा मेजरली क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए और वो सही भी हुए होंगे. So ये थी मेरी overall strategy and journey. And if you have anything to ask about any of these things, you can
freely message me on Telegram or even leave a comment on the video below. I will definitely try to answer it as soon as possible. But before closing, I would again like to repeat that this video is not an advertisement or not a promotion for any coaching, any test series, but it's just my strategy and the way I prepared for the exam. Since I was a completely newcomer to this area of RPSC, Rajasthan GK, there were lots of friends and colleagues who helped me all the way and who helped me every time, who were more experienced than me. So I would really like to thank all of those from this platform. And I would also suggest be constantly in touch with those who are preparing, because they will always have something to share with you, and you will always get better inputs and better insights from this. Thank you so much and keep watching.